ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. لله الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من نور قلوب العارفين بسراب الهداية والفرقان وشرح صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان ووعدهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ مشکل کشا ہے مشکلیں آسان کر سکتا ہے ہم سب کی مشکلیں آسان کرتا ہے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی احترام کا جذبہ تھا ہمارے دل کو شادہ فرماتے رب العالمین آستان غوثیہ کے حفاظت کرتا ہے یہ رونقیں یہ محفلیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور میری دعا ہے قیامت تک ایسی محفلیں جاری و ساری ہیں اللہ تعالیٰ آپ کتنے بیٹھے ہیں اپنے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش لیے بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی آرزو ہے کوئی نہ کوئی تمنا ہے رب العالمین آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرتا ہے اور آپ کی در و دیوار کی حفاظت پاکستان کی حفاظت ملتان کی حفاظت اولیاء کے انحصاروں کی حفاظت فرمائے ہماری مسجدوں کی امام بارگاہوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری قوم کو یکجا فرمائے ہماری قوم کو یکجا فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کی بات کرنے کی طاقت عطا فرمائے ہمارے ملک کو ہم اسلامی جمہوری مملکت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمہوری قدروں کی پہچان عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فسطائیت سے اور ہر آمریت سے محفوظ فرمائے اور جمہوریت کا بول بالا ہو آئین کی بالادستی کو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے الہیات و محمود کرتا بلائے دودھ رانا دودھ کرتا الہیات پر خیر کرتا بادشاہ جب مارا درخدار من نکارے تو مجدار تو لکھو کاری و معبت کرتا ہے جرموں کے انداز و کرتا ہے اللہ صلی اللہ آپ سب کو ہی مبارک آج نہیں لیا جعفر نے کہا ہاں پیاز صحیح ہے ابھی تار نہ پھنسے تار کھینچ لے اپنی طرف جیسے ٹرائی بورڈ کے نیچے آئی ہوئی ہے کر لے اٹھا لے تو چل پا گیا نا ایسا ایسا فریم ہونا خراب ہو جائے تھوڑا پیچھے ہو جائیں بیٹھ گیا وہیں پیچھے بیٹھ جہاں بیٹھے تھے شاہ جی ایک منٹ ٹرائی پر سیدھا کر سجا کر یار جابر تھوڑا ادھر کر یار بہت ہی زیادہ ادھر لے میں آ رہا آپ ایک مائک اوپر رکھیے اچھا
दुनिया की डे दुनिया तो सब दुनिया थोड़ी नाल है दुनिया थोड़ी मिठाई दो क्या हाल है आपका ईद मुबारक थोड़ा तार बेटा खुलवा दो तार थोड़ा तार ये थोड़ा सा साइड पे, थोड़ा सा मतलब आप पीछे। छोड़ दो यार ऑडियो जानी है जस्ट ना कितने बजे करें चलो ठीक है बाद में अच्छा तो बलते 10-15 मिनट दिन 15 मिनट दिन चलना है कहते हैं अब शुरू कर देते चलो भाईजान बैठ जाओ देखो जी बैठ जाना ओके 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 में लगा रहा है यार अब आप आ जाओ 5 मिनट लगा रहे हैं ओ मेरे भाई ऐसे नहीं होना ना आप इसमें ध्यान भाई थोड़ा ठहरो ध्यान भाई थोड़ा एंजॉय करो जरा अगर बंदा उठ के ना बंदा उठ के 5-7 मिनट निकलना सर लेट किए से अच्छा मेरा बेचा एक तरफ हो जाओ 9 बजे कोई थोड़ा बुलेटिन थी कैसे हाँ बुलेट हो गया ऑल हेडलाइन आवे से 5 उससे पहले कर लेना पहले कर ले ओके ठीक बैठिए यार चले शाह साहब बिस्मिल्लाह करें सर करे जी बिस्मिल्लाह इमरान भाई मेरा बिस्मिल्लाह बेटा करें आप एक तरफ बैठ जाए ना आज वाले भाई लाइव वाली तार कहाँ है उसने मेरे से प्रोटेक्टर लगा दिया फोन यार हाँ बस फोन चेक कर लो अपने यार तो पहले आगे करो वाले या तो आउट गेम गिनो तो पैरों टेक्निकल काम खेलो करे जी ठीक है आप ठीक है बोल का क्या है मसला बोल के बता देते एक गिनो बोल नहीं बोलेगा तो ठीक है ऑडियो ले लिए हे बस तारे तार हिलाओ चार चलो और यार बस कर दो बेटा अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं आज मुल्तान से पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान की जो आपकी इबादत हैं आपके सदक़ात जो हैं खैरात है उसे कबूल फरमाए आपकी रियाजत में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस पाक महीने की बरकतों से पाकिस्तान की खैर फरमाए आज पूरी उम्मा एक नए माहौल में ईद मना रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे के बाद हमने एक नई कैफियत देखी है कि आज वो जो हमारी उम्मा में तनाव था वो आज बेहतरी की तरफ ताल्लुकात ने रुख अख्तियार किया है। मुझे खुशी है कि इस्लामाबाद की OIC की मीटिंग ने माहौल को साजगार करने में एक कलीदी किरदार अदा किया। आज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान के वज़रा ख़ारजा में एक नई गर्मजोशी दिखाई दे रही है। उनके सफारती ताल्लुकात बहाल होने चले हैं। आज हम देख रहे हैं तुर्की और सऊदी अरब में एक नई बेहतरी की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ है। आज हम देख रहे हैं सीरिया और दीगर ममालिक में जो एक खलीज थी वो कम होती दिखाई दे रही है। आज हम देख रहे हैं कि GCC ममालिक के अंदर जो एक तनाव था उसमें बेहतरी आ गई है। मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे बाद उम्मा यकजा हो रही है और OIC जिन मकासद के लिए बनाई गई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ हम लौट रहे हैं। तो इस पर मैं पूरी उम्मा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने इसमें अपना हिस्सा मिलाया है।
दूसरी चीज़, SCO का इजलास भारत में होने चला है। मैं तवक्को करता हूँ कि अगर बिलावल जरदारी वहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को नहीं भूलेंगे और वहाँ उन्हें जहाँ मौका मिले उनके जो हकूक़ पामाल हो रहे हैं उसके बारे में पाकिस्तान का जो तारीख़ी मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को उजागर करेंगे, उनके हकूक़ का दिफा करेंगे, हक़ के खुद इरादियत का जो जज्बा है उसकी तजदीद करेंगे और हुर्रियत लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। सैयद अली गिलानी की वफ़ात के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बड़े अरसे के बाद 10-12 सालों के बाद दिल्ली जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो इस मौके को गनीमत समझते हुए पाकिस्तान का जो तारीख़ी मौक़िफ़ है कश्मीर पर उसको उजागर करेंगे। और दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में जो अक़लियतों के साथ बर्ताव बरता जा रहा है उस पर भी अपनी तशवीश का इजहार करेंगे, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ। आपने देखा कि आज वहाँ मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, आपने देखा कि एक नई जुनूनी कैफियत ने उनको जकड़ के रख दिया है। वो हिंदुस्तान जो एक वक्त में फ़ख्र करता था कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं, आज उनमें एक हिंदुत्वा सोच गालिब आ गई है और मैं समझता हूँ कि उन्हें इसे उजागर करने का एक सुनहरी मौका मुयस्सर आ रहा है और वो इसको पूरी तरह पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करने में इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को जिस आइनी बहरान से दो चार कर दिया गया है उससे निकाला जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मौका फराहम किया है और कहा है कि मुल्क की सियासी क़यादत बैठकर अगर कोई रास्ता तलाश कर सकती है तो वो बेहतर रास्ता होगा। तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया और मैं इस मौक़िफ़ को दोहरा देता हूँ कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमारा जो डायलॉग है वो आइन के दायरे के अंदर हो सकता है, आइन से मावरा नहीं हो सकता। Within the framework of the Constitution, we are willing to sit with all other political parties to see Pakistan out of this constitutional crisis. मुझे खुशी है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की नशिस्त हुई थी, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत को नुमाइंदगी का मौका मिला, वहाँ PDM की जमातें मौजूद थीं और उस 3 रुकनी बेंच के सामने वो सर-ए-खम तस्लीम खड़ी हो गईं, जिसके फैसले पर कल तक वो थोड़े से मोतरज़ थे। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में तश्कील शुदा बेंच को तस्लीम किया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इंशाअल्लाह 26 तारीख को नशिस्त होने चली है। मुझे इमरान खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी दी कि मैं पार्टी की नुमाइंदगी करूं सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने की। 26 तारीख को अगर नशिस्त होती है तो इंशाअल्लाह उस पर जाएंगे और बात करेंगे। हमारी ख्वाहिश ये होगी, मेरी जमात की ख्वाहिश ये है कि मुल्क इस बहरान से दो चार नहीं हो सकता। हमारी माशी हालत अभी बहुत बिगड़ चुकी है और अभी भी IMF के साथ कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो वफद गया वो भी कोई नशिस्तें नतीजा खेज साबित नहीं हुई, मामला अभी जूं का तूं है। इन हालात में एक सियासी इंतशार और एक गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी और हमें मिलकर एक रास्ता तलाश करना है। नेक नियति से हम उस रास्ते को तलाश करने के लिए बैठने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस नशिस्त को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल
नहीं होना चाहिए। हमें यह खदशा है, और मैं आज उस नशिस्त में जाने से पहले मीडिया के सामने अर्ज करना चाहूँगा, हमें ये खौफ है कि कहीं पीडीएम सरकार इस नशिस्त को ताख़ीर के लिए इस्तेमाल न करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़े है, आइन बिल्कुल उसमें कोई अबहाम नहीं है, वाज़े है। 27 तारीख की तारीख आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो वसाइल इलेक्शन कमीशन को मिलने हैं वो मुहैया कर दिए जाएंगे। उससे हुकूमत की नीयत का एक पहला इजहार होगा कि हुकूमत इंतखाबात में आगे बढ़ने के लिए कितनी संजीदा है। और अगर वो चाहते हैं कि एक दिन बैक वक्त सारे मुल्क में इंतखाब हो, तो उसके लिए भी हमें देखना होगा कि आईनी रास्ता क्या है, कानूनी रास्ता क्या है। तहरीक इंसाफ एक ऐसा प्रपोजल लेकर जाएगी कि अगर वो नौबत आई, पहले तो है अगर कंसेंसस खुदा न खास्ता नहीं हो पाता तो 14 तारीख का फैसला, 14 मई का फैसला एक आईनी फैसला है। और अगर कोई पेशरफ्त होती है पॉलिटिकल गुफ्तशुनीद से, तो उसके लिए भी एक माहौल बनाना होगा, और उसके लिए एक वन ऑफ आईनी तरमीम, हमारी राय, हमारे आईनी माहिरीन की राय के मुताबिक वन ऑफ तरमीम दरकार होगी। उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। उस 2/3 अक्सरियत के लिए तहरीक इंसाफ को असेंबली में जाकर अपना किरदार अदा करना होगा, तभी तो 2/3 अक्सरियत हासिल होगी, नहीं तो हुकूमत के पास तो नहीं है। तो देखते हैं कि हुकूमत और स्पीकर की क्या रविश होती है और कितनी फराखदिली का मुजाहरा करते हैं। इमरान खान साहब ने मुल्क की मफाद में इस मुल्क को इस कैफियत से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा जेस्चर दिया है, और तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप बैठिए और मुल्क को गुफ्तशुनीद से, इस बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए आइन की फ्रेमवर्क के अंदर। ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब में से 4 मजबूत जो उम्मीदवार थे, जिनमें से आप एक भी थे, जिनके लिए वज़ारत आला का नाम मुस्तक़बिल में लिया जा रहा है, उन चारों को टिकट्स नहीं दी गई। आप पार्टी के इस फैसले को किस वजह से देखते हैं? देखिए, इस पे मेरी इमरान खान साहब से नशिस्त हुई। उन्होंने टिकट का मसला नहीं था, उन्होंने बड़ी महफिल में कहा था कि PP 217 आपकी नशिस्त है और आप इस पे फैसला कीजिए। लेकिन जो मुल्क की चैलेंजेस हैं और जो मुल्क की हालात में आगे देख रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत मरकज़ में होगी। मुझे आपको मेरे करीब होना होगा, मेरे करीब रहना होगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मरकज़ में अपना किरदार अदा करें। तो मैंने पार्टी के विज़न, इमरान खान की ख्वाहिश को फौकियत दी और अपनी ख्वाहिश को वापस कर लिया और अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ किए। उन्होंने मेहरबानी फरमाकर जैन, जो वहाँ से सिटिंग MPA थे, जिन्होंने वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन जीता था, उन्होंने टिकट इनायत फरमा दी। टिकटों की तकसीम के आपके करीबी साथी जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं और जैन साहब के मद्दे मुकाबले इलेक्शन। कोई बात नहीं, वो हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो टिकट एक को मिलनी होती है, ख्वाहिशमंद ज़्यादा होते हैं, कुछ मायूस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बजा तौर पर होते हैं। हमने उसके लिए एक मैकेनिज़्म बना लिया है। और आज इस नमाज के बाद मैं लाहौर ही रवाना हो रहा हूँ। इमरान खान साहब की सरबराही में हमारी एक नशिस्त होगी, जिसमें इस किस्म के कुछ लोग जो हैं, जो अपनी नज़रसानी की अपील डालना चाहेंगे, हम उसको एंटरटेन करेंगे। ज़मान पार्क भी जो है, जैसे टिकटों की तकसीम का ऐलान हुआ, ज़मान पार्क खाली हो गया। आप फिक्र न कीजिए, कल रात ज़मान पार्क में आपने देखा चांद रात की बेपनाह रौनक थी, और इंशाल्लाह आज भी होगी और कल भी होगी। बिल्कुल फिक्र न कीजिए। अजय शाह साहब, IMF जो है मुतमईन नहीं हो पा रहा, वजह क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम है, इसको हैंडल किस तरह करना होगा?
ये तो आप डार साहब से पूछिए, इसका बेहतर जवाब तो डार साहब दे सकते हैं। वो आए थे मुल्क को सियासी माशी बहरान से निकालने के लिए, और पूरी कौम ने देखा उन्होंने मुल्क को मज़ीद माशी बहरान का शिकार कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजरल बिल है उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, उसको बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया। उस बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर भी दे चुकी है। तो इसके ऊपर उस बिल की कोई जिसे कहते हैं ना, फ़िलहाल कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, क्योंकि उसके अमल दरामद को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। 8 रुकनी बेंच ने, यानी कि फुल कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया है। वो सस्पेंड होगा, और जब उनका फैसला आएगा तो हर चीज़ वाज़ेह आ जाएगी कि क्या उसको वो आइन के मुताबिक समझते हैं या उसको स्ट्राइक डाउन करते हैं। शाह साहब बताइएगा, 14 मई का इलेक्शन मुलतवी होता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रद्द-ए-अमल का हिसाब है? पहली बात तो है कि 14 तारीख का इलेक्शन सामने है, तारीख आ चुकी है। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं होती तो 14 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। शाह जी क्या कहेंगे सिक्योरिटी के हवाले से? पीडीएम के तमाम जो लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं, जिसके लिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। कि आप क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान में बेहतर नहीं है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताएं, हमें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो हालत जंग में भी हुए हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से पीडीएम की सरकार पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के इमेज को इतना बिगाड़े मत कि दुनिया को ये तासुर दें कि पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। ये तो इनकी अपनी कमज़ोरी है, ये तो अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही हैं। वो असेंबली में मनी बिल लेके जाते हैं और मनी बिल मुस्तरद हो जाता है। ये तो उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि जो गवर्नमेंट मनी बिल पास ना करवा सके तो इखलाकन तो वो रहती ही नहीं है। पार्लिमानी रवायत तो यही है। सर, नवाज शरीफ की कल मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, आप किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात? वो उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश की, उन्होंने मुलाकात का टाइम दिया। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कुछ उनको अच्छा सबक पढ़ाया होगा। सर ये बताएगा, भारत में जो है गुज़िश्ता रोज़ आसमानी बिजली गिरी, जिसमें जो है 5 से 6 फौजी हलाक हुए, उसका जिम्मेदार भी है पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। ये इसी तरह जैसे पुलवामा का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया, और अब हालात बिल्कुल खुल कर सामने आ गए। उनके अपने मकबूजा कश्मीर के गवर्नर इस बात का एतराफ़ कर गए कि ये एक नाटक था, एक सियासी नाटक था जो इलेक्शंस के जीतने के लिए बीजेपी सरकार ने रचाया था। आज भी हमें ये एक किस्म का एक मंसूबा दिखाई देता है कि बिजली गिरे और उसको आप ग्रेनेड हमले से तशबीह दे दें, तो ये मुनासिब नहीं है। ये हिंदुस्तान इस किस्म की हरकतें न करे। इस किस्म की हरकतों से वो अपना नुकसान कर रहा है, और हक़ाइक़ छुपते नहीं है, सामने आ जाएंगे। थैंक यू। शरमत भाई देखिएगा